Hello class. So today we discuss the topic expansion of the empire under अकबर. ठीक है, अकबर के अंडर में उनके साम्राज्य का विस्तार. Akbar, one of the greatest king in Indian history, proved to be a great conqueror as well as an excellent administrator. So अकबर वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट कनकर, यानी कि एक विजेता ही नहीं थे बल्कि वो एक एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर भी थे. एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब कुशल प्रशासक. He employed different methods to expand his empire, or he adapted different kind of way to enlarge his empire. ठीक है, तो कॉन्क्विस्ट. अब हम देखेंगे क्या क्या उन्होंने विजय प्राप्त की, कहाँ कहाँ पर. आफ्टर कंसोलिडेटिंग हिज रूल ओवर दिल्ली एंड आगरा, Akbar occupied Jaunpur and Gwalior. He then turned his attention to Malwa and defeated its ruler Baz Bahadur. Baz Bahadur later became an official at Akbar's court. So लगभग पूरा नॉर्थ, उसके अलावा आप राजस्थान में मालवा चला जाएंगे और वहाँ पर भी जो उसके रूलर थे बाज बहादुर, उन पर भी उन्होंने विजय प्राप्त की. एंड लेटर ऑन बाज बहादुर बिकेम एन ऑफिशियल, और बाद में बाज बहादुर उन्हीं के दरबार के एक इम्पॉर्टेंट ऑफिसर बन गए. Gondwana, the central Indian state, was captured despite the gallant resistance of the Rajput queen रानी दुर्गावती. ठीक है, गोंडवाना जो सेंट्रल इंडियन का पार्ट है उन पे भी उन्होंने कब्जा किया. हालांकि रानी दुर्गावती की गैलेंट रेजिस्टेंस मतलब बहुत बहादुरी से उन्होंने उनका सामना किया. However, he occupied that area also. Over the next 15 years, 1576 to 1591, Akbar extended his hold over the whole of the northern India. Kabul, Kashmir and Sindh submitted to his authority. Balochistan and Kandahar followed. Gujarat, Bengal and Orissa were then added to the Mughal Empire. So you can see, so he almost occupied the complete northern India. Akbar then turned south of the Vindhyas and took Khandesh and Ahmednagar. Now he was attentive towards South India. So he captured Vindhyas and Khandesh. The Bahmani kingdom now consisted of the three states of Ahmednagar, Bijapur and Golconda. Chand Bibi tried bravely to defend Ahmednagar, but in 1597 CE surrendered to Akbar. ठीक है, तो चांद बीबी ने भी उनका बहुत जो अहमदनगर की रानी थी उन्होंने भी उनका बहुत ही बहादुरी से सामना किया. हाउएवर शी हैड टू सरेंडर्ड इन 1597. By the end of the 16th century CE, Mughal Empire stand over the whole of the northern central including parts of the Deccan. So under the rule of Akbar, तो almost whole northern, central and some parts of south also included in his empire. Now we learn about the Rajput policy. राजपूतों के साथ उनका कैसा था behavior. Renowned for their valiant spirit and material prowess, the Rajput stood as a great obstacle to the further extension of the Mughal power in India. ठीक है, तो जो अपनी बहादुरी के लिए बहुत फेमस थे और ये सबसे बड़े क्या थे, ऑब्स्टिकल थे. किसके लिए? अकबर के लिए. अकबर के साम्राज्य के विस्तार में वो क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा बाधा डाल रहे थे. अकबर रियलाइज दिस अर्ली इन लाइफ एंड टुक सेवरल स्टेप्स टूवर्ड्स मेंटेनिंग गुड रिलेशन विद देम. Then Akbar realized that if he wanted to establish his empire in India, so he had to maintain good relationship, good harmony relationship with Rajputs. So he followed some steps. So let's look at what are the steps which he followed to maintain the good relationship with Rajput. Akbar gave the Rajput important position in the empire and put them in a charge province like Agra, Ajmer and Gujarat. तो क्या किया अकबर ने राजपूतों को एक अच्छी सी पोजीशन थी. ठीक है, उनके राज्य में उनको एक बहुत अच्छी सी पोजीशन थी. अकबर मैरिड टू द डॉटर ऑफ राजा बहरमल ऑफ एम्बेर. By entering into the ties of marriage with Rajput kingdom, Akbar cemented his relations with the Rajput further. ठीक है, फिर not only that, he also established the marital status. राजपूतों के साथ उसने राजपूत जो राजा बहरमल थे उनकी डॉटर के साथ मैरिज करके उन्होंने एक अच्छा सा रिश्ता उनके साथ भी बनाया. However, Raja Uday Singh of Mewar was a notable exception and the struggle against his kingdom from an important chapter in Mughal history. ठीक है, तो राजा उदय सिंह जो थे वो अकबर की क्या कर रहे थे, किसी भी बात से वो अग्री नहीं थे. तो ही
was he created so much obstacle in the way of Akbar's ruler. Akbar fought hard against the gallant Rajput king and defeated him at the Chittor in 1567 CE. In this battle, a stray shot hit and commander of Mewar's army Rao Jaimal. His death threw the Rajput forces into disarray. In the chaos that followed, thousands of soldiers died. ठीक है, तो जब युद्ध हुआ चित्तौड़ में 1567 में अकबर के बीच में और राजपूत किंग जो थे राजा उदय सिंह के बीच में, तो उनका जो एक ऑफिसर था मेवाड़ का आर्मी का राव जैमल, उनकी क्या हो गया, उनको एक क्या लगा स्ट्रे शॉट, उनको एक बहुत तेज़ी से चोट लगी और उसकी वजह से क्या हो गई थी कि राजपूत जो फोर्सेस थी वो डिसारे मतलब कंफ्यूज हो गई, उनके बीच में कन्फ्यूजन हो गई और इसकी वजह से बहुत सारे जो राजपूत के जो सोल्जर्स थे वो भी मारे गए. Uday Singh escaped from Chittor and fled to the Girwa Valley and there near a lake founded the city of Udaipur. हालांकि जो उदय सिंह थे वो वहाँ से भाग निकले और उन्होंने एक नई सिटी बनाई जिसका नाम है उदयपुर एंड इट इज़ वेरी फेमस सिटी इन राजस्थान. ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ओवर लॉर्डशिप ऑफ मुगल्स. ठीक है, उसने मतलब अंत तक उन्होंने अकबर की जो सत्ता थी उसको स्वीकारा नहीं. अकबर ऑल्सो डिफीटेड राणा प्रताप सिंह at the Battle of Haldi Ghati in 1576 AD. Rana Pratap Singh, he was also one of the very important ruler of the Rajput. उनको भी नहीं हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेट 1576 हल्दी घाटी का युद्ध एंड इट वॉज फॉट बिटवीन राणा प्रताप सिंह एंड अकबर. बट राणा प्रताप रिफ्यूज टू सरेंडर एंड रिट्रीटेड इनटू द माउंटेन फोर्ट्रेसेस. ठीक है, लेकिन राणा प्रताप ने वो भी सरेंडर करने से मना कर दिया और वो पहाड़ियों के जो किले थे वहाँ पे भाग गए. ही लेटर रिकैप्चर्ड ऑल द लॉस्ट टेरिटरीज एक्सेप्ट चित्तौड़. और बाद में राणा प्रताप जो थे उन्होंने जो भी हारा फिर जीता, लेकिन चित्तौड़ को वो जीत नहीं पाए. अकबर वॉज थस नेवर एबल टू कॉन्क्यूर Mewar fully. However, he decisively subdued Rajput power. They were never able to regain their power for all their lost territories. हालांकि अकबर जो थे वो मेवाड़ पे कम्प्लीटली कभी भी राज नहीं कर पाए, लेकिन जो राजपूत थे ही डिसिसिवली सबड्यूड राजपूत फॉर. लेकिन बहुत उसने चालाकी से क्या कि राजपूतों के पावर को उसने दबा दिया और राजपूत और अकबर जो थे दे वर नेवर एबल टू रिगेन देयर पावर और ऑल देयर लॉस्ट टेरिटरीज. जो राजपूत थे वो कभी भी अपनी जितनी भी टेरिटरीज उन्होंने खोई थी वापस वो नहीं पा सके. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द राजपूत पॉलिसी अंडर द रूलर ऑफ अकबर. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल शेयर यू द लैंड रेवेन्यू सिस्टम. थैंक यू.